बैक्टीरियाज दे सबसे पहला क्या हो गया, बैक्टीरिया एटसेट्रा एटसेट्रा started living on the earth. They started reacting, or what you can say, combining with the soil etc., and they started releasing oxygen in the atmosphere. Oxygen बनना शुरू हो गया. Then that oxygen was slowly and steadily utilized by other microorganism and plants started developing. Then plants started giving carbon dioxide and microorganisms started giving oxygen. ये सिलसिला चलता गया and slowly and steadily other kind of gases were also started releasing. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलने के बाद बाकी बहुत सारा कंपाउंड्स वगैरह बनता गया एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टार्टेड टेकिंग शेप ऑन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट. So it's all started with biogeochemical cycle only. Barabar. Now there are two types of biogeochemical cycle. One is the gaseous cycle, one is sedimentary cycle. Gaseous cycle, what is gaseous cycle? From the name itself we can understand that gaseous cycle is the cycle where the gases reacts with each other. Okay, in the Earth's atmosphere. Okay, these type of, what are the gases that reacts with each other? Nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, etc. Okay, and then what is sedimentary cycle? An accumulation of main abiotic nutrients is found in the soil, sedimentary and sedimentary rocks etc. on the earth. This includes soil components like iron, calcium, phosphorus etc. Okay, समझ में आया? There are two types of biogeochemical cycle. जो एटमॉस्फेयर में होता है where gases reacts with each other. जो sedimentary cycle होता है that is taking place in the sediments, that is below the earth surface. ओके, एक जो धरती के ऊपर होता है वो गैसेस साइकिल है, धरती के नीचे जो साइकिल चल रहा है दैट इज सेडिमेंट्री साइकिल. समझ में आ गया? क्लियर है? सो हियर दे से द गैसेस साइकिल इज स्पीडियर साइकिल देन द सेडिमेंटेशन साइकिल. फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्यूमुलेटेड इन एन एरिया, इट इज क्विकली डिसअपियर्स व्हेन द विंड और एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट. हवा चलेगा तो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाएगा. बराबर है? थैंक गॉड, ये अच्छी बात है कि गैसेस, हवा चलता है तो गैस वहाँ से चला जाता है. नहीं तो लेट्स इमेजिन, लेट्स सोचो खाली कि यू आर सिटिंग इन योर क्लासरूम और किसी का पेट खराब है और हवा नहीं चलेगा तो उधर तुम्हारा क्या हालत होएगा. बराबर? तो प्रिंसिपल वुड हैव टू ऑर्डर ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर स्टूडेंट्स. So now do you know this fact? This is something, page number 84, you have to read it completely entirely on your own. Okay, let's move to another kind of cycle. Biogeochemical cycles are of various type. The carbon cycle. Okay, in this is also a kind of cycle where we can see carbon is rotating or in a cyclic form similar to food chain. Food chain कैसा घूमता था वैसा कार्बन भी घूमता है. Okay, how it happens? Plant converts carbon dioxide into carbohydrates by the process of photosynthesis. आ गया वही रिएक्शन जो हम लोगों ने लास्ट लेसन में पढ़ा था. Similarly, they produce carbon compounds like proteins, fats too. ये सब कुछ क्या है? We like to eat things which have protein so that we can grow strong. Proteins हो गया, fats हो गया, carbohydrates हो गया. All these nutrients are different forms of carbon compound. Okay. That is the reason why carbon is called the basic of living things, basic of life. Carbon is the basic unit of life. इसीलिए we can see on our space expedition mission, जिस planet के ऊपर if they trace that carbon element is available, if carbon is available on that particular planet, that means life is possible. Life is not possible without carbon. Okay. They produce proteins and fats. Herbivorous animals feed on them. Carnivorous feed on herbivorous. In the way, biotic carbon is transported from plants to herbivorous and from herbivorous to carnivorous and from carnivorous to apex consumer. बराबर है? So here we are seeing that carbon dioxide is only being passed on. So carbon cycle, if you get a question to write a short note on carbon cycle, okay, guide में भी बहुत बड़ा दिया हुआ है. If they give you a photo, this photograph will be given in your exam paper and they will ask you what is the cycle, explain it.
Okay, in order to explain this particular cycle, we have to say what is the carbon cycle. Okay, so here we have to pick up only this first sentence, that is definition of carbon cycle, and a short note explanation this. Okay, this is the perfect answer for short note on carbon cycle or explain carbon cycle. Along with that, जो हम लोग ने रिएक्शन लास्ट लेसन में पढ़ा था वही रिएक्शन वापस से लिख लेना है. ओके, विच विल बी अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर. ओके, दिस कैन कम फॉर 3 to 4 मार्क्स. कार्बन साइकिल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन साइकिल आता ही आता है, बिकॉज कार्बन साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सिलेबस, बिकॉज कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर लाइफ. विदाउट कार्बन लाइफ इज नॉट पॉसिबल. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ carbohydrates, proteins, etc., which is again a form of carbon. बराबर. Now you understand, diamond is also a form of carbon. हम लोग diamond के लिए इतना crazy क्यों है? Because it is a part of our body itself, not a part of our body directly, but the उसका जो components है, that same components are used to make up what? Our body also. Okay, carbon cycle हो गया. Then we have the oxygen cycle. That is, oxygen forms 21% of the atmosphere. We all know that total atmosphere 21% is oxygen. Okay, now oxygen is so very important for us. So ऐसा क्यों नहीं हुआ भगवान? अब लोग कभी कभी सोचता है ना स्टूडेंट लोग कि भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया कि पूरा एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन ही बना देता तो हम लोग के लिए कितना अच्छा रहता था. ओके, ये कब सोचता है? जब अपना कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर इज़ इल और उसको हॉस्पिटलाइज किया. हॉस्पिटल में जाने के बाद ही मालूम पड़ता है, जब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है पेशेंट को, और उसके बाद जब बिल बनता है तो बिल में देख के समझ में आता है ऑक्सीजन इज़ सो एक्सपेंसिव. बराबर. तब तक ऑक्सीजन का वैल्यू नहीं समझ में आता है. ऑक्सीजन का वैल्यू तभी समझ में आता है व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल एंड यू रियलाइज आफ्टर सीइंग द बिल. भैया ऑक्सीजन सिलेंडर एक दिन के लिए लगाया था, 7,000 रुपया बिल लगाया, उसका 10,000 रुपया बिल लगाया एक दिन का. खाली काय के लिए? ऑक्सीजन सांस लेने का 10,000 रुपया. बराबर. डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटल यू गो. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन फ्री रहता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या बोलेगा वार्ड बॉय तुमको? अरे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तुमको पेशेंट को बचाने का तो बाहर से दुकान से खरीद के लेके ऑक्सीजन सिलेंडर हम लगा देगा, मेहरबानी कर रहा है. बराबर. बट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर आप लोगों ने देखा होगा. ऐसा नहीं कि स्कूल में सिखाने की ज़रूरत है. The world itself is a very big school that can teach you much more than what you learn in your schools. Okay, let's come to the point. Oxygen circle. We always think that 21% है. God अगर इसको बढ़ा देता था, 50% करता था, we would have never suffered from deficiency of oxygen. बराबर. Now this is good to understand that we won't suffer with deficiency of oxygen. But अगर ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाएगा तो क्या होएगा? सबसे मेजर इम्पैक्ट होगा इंसेक्ट्स को. इंसेक्ट्स, ओके, that breathe not through lungs but they breathe through their skins. जो भी इंसेक्ट अपना स्किन से ब्रीथ करता है, लाइक जैसा कॉकरोचेस हो गया, अर्थवर्म हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा बहुत सारा इंसेक्ट्स है. ओके, द एंशिएंट ऑफ दैट इज कॉल्ड द ऑटोपोड्स, ऑर्थोपोड्स, ओके, और अर्थ्रोपोड्स. ओके, ये एक क्या बोलते हैं ना, कॉकरोच जैसा ही कीड़ा है जिसके ऊपर कास्ट्रो जैसा शेल रहता है. ऑर्थोपोड्स. ओके, दे आर ऑफ द साइज ऑफ योर इंडेक्स फिंगर. अगर ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाएगा इन द एटमॉस्फियर तो व्हाट वुड बी द रिएक्शन? आपका घर में जो कॉकरोच आ रहा है ना, छोटा सा, आपके इंडेक्स फिंगर से भी छोटा, ओके, उसका साइज़ बढ़ के अगर ऑक्सीजन 20% बढ़ेगा तो उसका साइज़ 40% 60% बढ़ जाएगा. So it's very much possible if the oxygen contents of the atmosphere increases to 50%, तुम्हारे घर में जो कॉकरोच आएगा that will be of the size of a pigeon or a crow. इतना बड़ा कॉकरोच आएगा, मारेगा कैसा? बराबर. फिर तुम उसको मार के नहीं भगाएगा, वो तुमको घर के बाहर भगा देगा. ये साइज़ हो जाएगा उन लोगों का, इंसेक्ट्स का. स्नेक्स, जो आज की तारीख में वी सी अ 5 फुट लॉन्ग स्नेक और डर के भाग जाता है. बराबर. तो इवन स्नेक्स ऑल्सो, इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? इवन स्नेक्स भी बहुत लंबा हो जाएगा. अर्थवर्म बड़ा लंबा हो जाएगा. अर्थवर्म यू विल बी एबल टू सी अर्थवर्म ऑफ द साइज ऑफ अ स्नेक. वेरी मच पॉसिबल. ओके,
चलो ये ज़्यादा एग्जांपल देने का ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ वेरी हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू लर्निंग लेसन्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वो टाइम पे यू विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल कि अगर ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ गया तो उसका असर क्या होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो उसका क्या होएगा. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो सबसे ज़्यादा क्या होएगा, यू विल स्टार्ट वही सब प्रॉब्लम होएगा जो अभी बॉम्बे में हो रहा है. ओके, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दमा, चक्कर एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, चोकिंग, ये सब जो प्रॉब्लम्स है दैट इज़ बिकॉज बॉम्बे में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर के अंदर. कार्बन डाइऑक्साइड तक तो ठीक है, फिर भी अपने बॉडी को आदत हो गया है चला के लेने का, लेकिन पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स वगैरह जैसा भी गैसेस वगैरह बन जाता है विच इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस. ओके, सो ऑक्सीजन साइकिल भी क्या है, ऑक्सीजन हैज़ टू बी मेंटेन. Animals and living organism etc, human beings, animals, all the animals, okay, we breathe in oxygen and gives out carbon dioxide. This carbon dioxide is again, plants कैसा respiration करता है, they take in oxygen and give out they take in carbon dioxide and give out oxygen. बराबर. they break down sugar molecules. एनिमल्स भी क्या करता है, शुगर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म शुगर मॉलिक्यूल्स. दैट इज दे, वो लोग फूड बनाता है, हम लोग खाता है और ख़त्म करता है. बराबर. सो द ऑक्सीजन इज, वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू गिव ऑक्सीजन and plants give oxygen which we use to give carbon dioxide. this is the oxygen cycle. एकदम सिंपल और एकदम इजी है. बराबर. यही सेम चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते यू विल कम इनटू, मतलब बीएससी एमएससी करने तक अगर साइंस लिया गलती से तो, फ़िलहाल मेरे पास 3 स्टूडेंट है, तीनों में से इतने ब्रिलियंट कोई भी नहीं है जिनको मैं सजेस्ट करूँगा कि यू गो फॉर साइंस. ओके, लेकिन अगर गलती से तुम लोग ले लेता है साइंस ना, तो फिर वहाँ पर तुम लोग को स्टडी करना पड़ेगा. अभी जो मैंने बोला ना, इंसेक्ट्स इतना बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मोर देन 100 एग्जाम्पल्स पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में डायग्राम वायग्राम बना के उसको लिखना भी पड़ेगा. तो बहुत मगजमारी वाला काम है. कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का है तो कॉमर्स या आर्ट्स ले लेने का सबसे बेस्ट. इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट एंड 10th में इफ़ यू स्कोर्ड लेस देन 80% तो चुपचाप से कॉमर्स ले लेने का. अगर कॉलेज का परसेंटेज अच्छा क्लोज भी हुआ है कि भाई चलो 75% वाले को भी साइंस दे रहा है तो हम लोग ले लेते हैं, वैसा नहीं है, लेने के लिए ले लेगा. लेकिन 12th बोर्ड के अंदर इफ़ यू डोंट स्कोर वेल, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यू वोंट बी एबल टू बिकम डॉक्टर एंड यू वोंट बी एबल टू बिकम इंजीनियर्स. फिर क्या करना पड़ेगा, 12th के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो डॉक्टर नहीं बन सकते वो क्या करते हैं, या तो नर्सिंग वगैरह का कोर्स कर लेते हैं. फीमेल्स दे गो फॉर नर्सिंग कोर्स, और एल्स नहीं तो क्या करते हैं, दे गो फॉर DMLT एंड BMLT कोर्स और ख़ुद का लेबॉर्ट्री खोलता है. ओके, मैं मेरे बच्चे लोग को इतना ही बोलूँगा कि अगर बेटा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सका ना तो साइंस छोड़ के वापस कॉमर्स लेके अकाउंटेंट बन जाना. लेकिन DMLT बन के पूरा ज़िंदगी भर दूसरों का पॉटी और दूसरों का टॉयलेट एंड यूरिन चेक करते नहीं बैठना. बराबर. मेरा स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस करूँगा, ज़िंदगी भर दूसरों का डर्टी चेक करने से अच्छा है, बेस्ट वे अकाउंटेंट में जाओ. जितना तुम्हारा कैपेसिटी है उतना करो, कैपेसिटी के बाहर मत सोचो, अपने कैपेसिटी के अंदर सोचना शुरू करो. राइट फ्रॉम द कॉलेज लेवल ऑटोमेटिकली सोसाइटी क्लैशेस बंद हो जाएगा. बराबर. ये ऑटोमेटिकली इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स अ बेटर सोसाइटी. जितना अपना कैपेसिटी उतना सोचो. बराबर. हाँ, वैसा नहीं सोचने का. अभी देख, दिस इज़ अ क्लैश ऑफ अपने औकात से ज़्यादा सोचने का ही क्लैश था. बाहुबली पिक्चर देख लिया तुम लोग ने. बराबर. जिसका कैपेसिटी था उसको हीरोइन मिला था, लेकिन जिसका नहीं था उसको भी चाहिए था, तो अल्टीमेटली पूरा पिक्चर बन गया. तो रियल स्टोरी है बोलता है, बट आई डोंट नो, मैंने हिस्ट्री में कभी पढ़ा नहीं, अपने को पढ़ाया नहीं ना. हाँ, साउथ में पढ़ाता रहेगा. फॉरगेट अबाउट दैट. ऑक्सीजन साइकिल क्लियर है, समझ में आ गया. इन शॉर्ट इसका शॉर्ट नोट गाइड के अंदर अच्छा दिया हुआ है, वहाँ से मैं दूंगा तुमको. ओके. कार्बन साइकिल यू डू इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ बिकॉज गाइड के अंदर बहुत बड़ा है वो.
Then come to the nitrogen cycle. Nitrogen क्या है? Okay, nitrogen cycle is the most important thing because here the atmospheric nitrogen is converted into compounds like ammonia, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स बनता है. ओके, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स द प्रोड्यूसर्स कैन ग्रो फटाफट एंड दे कैन फॉर्म मोर गुड एंड इकोसिस्टम बूस्ट होता है उससे. बराबर. सो नाइट्रोजन साइकिल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन दे डाई द नाइट्रोजन इज रिलीज्ड इन द एयर अगेन बाय decomposition. And atmospheric nitrogen is again during the rains and all is again converted into nitrates and nitrites. So this is your nitrogen cycle. Photograph को ध्यान में रखो. They will give you photographs and ask you what cycle it is. तो इसमें भी काव है, उसमें भी काव है. ओके, सो दैट इज ऑक्सीजन साइकिल. दिस इज नाइट्रोजन साइकिल. कैसा मालूम पड़ेगा? इधर देख, इधर सन निकला हुआ है. ये फोटो के अंदर सन है, तो दिस रिफ्लेक्ट्स ऑक्सीजन साइकिल. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन साइकिल बिकॉज सन है. इधर क्या है? इधर बादल आ गया, बारिश हो रहा है. सो दिस इज नाइट्रोजन साइकिल. इधर काव इज़ वेरी गुड. ओके, ये डट्टी काव है, पूरा सब स्वच्छ भारत अभियान को ख़त्म कर रहा है, जिधर उधर पॉटी करके गंदा कर रहा है. बराबर. सो दिस इज नाइट्रोजन साइकिल. डिस्टिंग्विश बिटवीन समझ में आया? फोटो के ऊपर से कैसे आइडेंटिफाई करेगा? 1 मार्क इसके ऊपर डिपेंड करता है. फोटो विल बी गिवन एंड दे विल आस्क यू नेम द साइकिल, विच साइकिल इट रिप्रेजेंट्स. ओके, दिस इज ऑक्सीजन साइकिल एंड दिस इज नाइट्रोजन साइकिल. फोटोग्राफ को ध्यान से रख लो और मेरे डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखो. ओके, इसको याद रख लो. रिवर्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इज नाइट्रोजन साइकिल. दिस इज स्वच्छ भारत अभियान. ओके, सो दिस इज ऑक्सीजन साइकिल. कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के लिए तो समझने का कोई ज़रूरत ही नहीं है. हियर यू हैव, इधर तुमको फोटोग्राफ भी है, सब कुछ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के फोटो में क्या दिया हुआ है? देयर आर फैक्ट्रीज दैट आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. बराबर. हाँ, तो ये इजी है, यू कैन आइडेंटिफाई दिस बिकॉज इसमें फैक्ट्री है. इधर फैक्ट्री नहीं है, सो ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ही रह सकता है. ऑक्सीजन इज बादल नहीं है, बिजली नहीं है, पॉटी भी नहीं है. नाइट्रोजन के अंदर बादल है, बिजली है एंड काउ इज गोइंग डर्टी ट्रिक्स. बराबर. समझ में आ गया? पूरा अभी तक जो कुछ पढ़ा है वो समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड बच्चा, क्योंकि लेसन तुम्हारा ख़त्म हो गया. ओके, अभी इसके बाद में यू विल रिसीव, आई विल सेंड यू ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. मोस्टली विल फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिकॉज ये लेसन के अंदर से अगर ब्रीफ आंसर्स आएगा तो कार्बन साइकिल, बायोजियो केमिकल साइकिल भी नहीं आएगा. कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एक्सप्लेन करके आएगा. ओके, एंड एक्सप्लेन फूड चेन और फूड वेब. ये 5 ही क्वेश्चन है जो आता है. ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, चूज़ द करेक्ट टर्म्स एट्सेट्रा, चूज़ द करेक्ट आंसर, ये सब कुछ ज़्यादा आएगा ये लेसन के अंदर से. सो वी विल बी कवरिंग दी राइटिंग वर्क और द थियरी वर्क अकॉर्डिंगली. ओके, चलो, पोर्शन फॉर योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट फॉर एफएक्स स्कूल इज़ ओवर फॉर साइंस 2 ऑल्सो. नाउ इमीडिएटली आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विथ मैथ्स 1 जो हमारा पहला लेसन रह गया है, सेट्स. ओके, चलो, बाय बाय.